پیر محل انتظامیہ کی نااہلی سے شہر بھر میں آوارہ کتوں کا راج ہے۔ گلی بازاروں اور سرکاری عمارتوں کے باہر آوارہ کتے دندنانے لگے ہیں۔ اسکول کالجز کے باہر آوارہ کتوں کی بھرمار سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کتے کاٹنے کے واقعات میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ شہر میں عرصہ دراز سے آوارہ کتوں کو طلب کرنے کی مہم بند ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آوارہ کتوں کا راج برقرار ہے۔ پیر محل انتظامیہ کی نااہلی سے شہر بھر میں آوارہ کتے ہیں۔ گلی بازاروں اور سرکاری عمارتوں کے باہر آوارہ کتے دندنانے لگے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ادرک کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ ایک تو مہنگا ادرک، دوسرا گرا فروشی کا بازار گرم۔ فیصل آباد بھر میں ادرک چائنا 1100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سرکاری ریٹ 735 روپے جبکہ بازار میں 365 روپے سے زائد میں فروخت کیا جانے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ محمد علی بتائیے گا۔ ایک ہفتہ قبل ادرک کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے 41 نے خبر اٹھائی تھی اور اندیا دیا تھا کہ اگر اس کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ قیمتیں 1000 روپے تک تجاوز کر جائیں گی، اور وہی ہوا۔ 735 روپے سرکاری ریٹ کے مطابق جو ادرک کی قیمت ہے ادرک چائنا کی، وہ اب شہر بھر میں 1000 روپے سے لے کر 1100 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 335 روپے اوپر وصول کیے جا رہے ہیں۔ ادرک کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں دن بہ دن، اور زیادہ تر ہنڈیا میں استعمال ہونے والا سبز مسالہ جات میں بھی شامل ہوتا ہے اور کئی فوائد بھی ہیں، لیکن عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں، جناب بتائیے گا، ادرک کی قیمتیں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، کیسے گزر بسر ہوگا، کیسے کھانے بنیں گے؟ بہت مشکل ہے جی۔ ایک آدمی جو 500 700 یا 1000 روپیہ کما رہا ہے تو وہ تو میرے خیال میں ایک دن میں صرف سبزی لے کے ہی جائے گا، اس میں بل کہاں سے ادا کرے گا، گھر کے دوسرے خرچے کہاں سے ادا کرے گا، بچوں کی فیس کہاں سے دے گا۔ یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ ہر چیز کو کنٹرول کرے۔ کھائیں گے کیا کھائیں گے، مشکل ہو رہی ہے۔ جناب آپ ذرا بتائیے گا، ادرک کی قیمت 735 روپے سرکاری ریٹ پر اور 1100 روپے میں بیچا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہوگا؟ جی یہ 735 روپے منڈی کا لسٹ ریٹ ہے، گورنمنٹ ہی 1000 روپے میں منڈی سے آ رہا ہے، ہم کیسے دیں 735 روپے؟ جو منڈی میں ریٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے، اور اگر ریٹ مناسب نہیں ملیں گے تو شہری شاید سبزیوں کا استعمال کیسے کر پائیں گے، اور دن بہ دن مشکل ہوتا جائے گا کہ ادرک کا ریٹ ہی 735 روپے تک جا پہنچا۔ سرکاری ریٹ تو زیادہ ہے ہی، اور جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ 1000 سے 1100 روپے تک میں فروخت۔ بہت شکریہ محمد علی نارو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں برائلر کی اونچی اڑان، انتظامیہ سرکاری نرخ پر عمل کرانے میں ناکام۔ چکن کی سرکاری قیمت 549 مقرر بلکہ بازار میں 710 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی، غریب لوگ کہاں جائیں، شہریوں کی دہائی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چکن 680 روپے کلو مل رہا ہے، 594 میں کیسے فروخت کریں۔ مزید جانتے ہیں کومیل حیدر سے۔ کومیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرکاری نرخ نامے سرکاری ریٹ لسٹ تک محدود ہو کے رہ گئے۔ چکن کی سرکاری قیمت آج 594 روپے جبکہ عام مارکیٹ کے اندر چکن 700 روپے 710 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چکن کی قیمت آج 700 سے بڑھ چکی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ مہنگائی میں جو غریب آدمی ہے وہ پس کے جو ہے نا رہ چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری تو کر دی جاتی ہے، لیکن اس پہ جو ہے عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں میری حکومت سے اور انتظامیہ سے اپیل ہے کہ خدارا غریب آدمی کا سوچا جائے، غریب آدمی کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ بالکل، شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دکاندار آزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے اس پہ 594 روپے ہے، 710 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سر ہم لوگوں کو جو ریٹ مل رہا ہے اس ریٹ پہ یا تو گورنمنٹ وہی ریٹ نکالے نا جو لسٹ پر ہے۔ 18,680 روپے آج من کا ریٹ ہوا تو اس کے حساب سے 700 تقریباً 10 روپے بنتا ہے۔ ہم لوگ 670-80 خود خرید کے 594 کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ابھی 18,680 روپے من کا ریٹ ہے، تو ان کو جرمانے کریں یا پھر ہم لوگوں کو اس ریٹ پہ یہ مال ملے جس ریٹ پہ ہم لوگ اپنا فروخت کر سکیں۔ جی بالکل، دکاندار حضرات بھی یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے تو چکن دکاندار حضرات کو بھی اسی ریٹ پر مہیا کیا جانا چاہیے جو کہ سرکاری نرخ ناموں پر درج ہے۔ بہت شکریہ کومیل حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
फैसलाबाद डिस्कोट में सीवरेज बहाली स्कीम 3 साल से मुकम्मल ना हो सकी। 40 करोड़ लागत की सीवरेज स्कीम ताहाल इल्तवा का शिकार। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्कीम पर काम मुकम्मल ना कर सका। वजूहात क्या है, ये बताएंगे इमरान असलम। इमरान, बताइएगा। अदम दस्तियाबी के बायस फैसलाबाद डिस्कोट में सीवरेज स्कीम की जो स्कीम है वो इल्तवा का शिकार हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 साल गुजरने के बावजूद स्कीम की ताहाल बकिया फंडिंग ना की जा सकी, जिसकी वजह से स्कीम के बेशतर इलाकों में जो सीवरेज की तनसीब लाइन और पाइप लाइन की तनसीब का जो काम था वो रुक चुका है। सरकारी कंट्रैक्टर्स की जानब से भी जो है वो काम छोड़ दिया गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट 40 करोड़ से ज़ायद की लागत से इस स्कीम पर काम कर रहा था और इस स्कीम पर जो है वो हालिया हादसे के पेश नज़र मजदूरों की जो जाँ भाग हो चुके थे, उसके बायस भी ये स्कीम पर काम रुक दिया गया है। अभी फंड ना होने की वजह से स्कीम पर काम रुक चुका है और अभी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट की जानब से सेक्रेटरी हाउसिंग और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को बकिया फंड जो है वो फराहमी की सदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए फंड जारी किए जाएँ ताकि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट इस स्कीम पर काम मुकम्मल कर सके। रवा माली साल के लिए स्कीम पर जो है वो काम मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह मनसूबा ताखीर का शिकार है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद में हजारों रजिस्ट्रियां गायब। फीस कीमत में करोड़ों रुपए वसूल ना हो सके। एडीसीआर समेत कोई भी अफसर सीट पर मौजूद नहीं। वकला का कहना है कि महकमा रेवेन्यू में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी, बताइएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो हजारों रजिस्ट्रियों की परतें गायब होने से लेकर करोड़ों रुपए की फीस ना पे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो अफसरान बाला है उनका स्टाइल चेंज ना हुआ। एडीसीआर सब रजिस्ट्रार कोई भी रेवेन्यू अफसरान अपनी सीटों पर मौजूद नहीं है। तो इसके क्या नुकसान होते हैं जब अफसरान नहीं बैठते, आगाह कीजिएगा। देखिए अब्दुर्रहमान भाई, जो आज तक जो है ना वो तकरीबन बहुत सारी रजिस्ट्रियों की परतें गायब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद जो आज बरोज़ जुमेरात तकरीबन जो पेशी है वो लगी हुई है एडीसीआर साहब की। एडीसीआर साहब अपनी सीटों पर मौजूद नहीं है, जबकि साइलिन वो दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं, वो यहाँ पर जिलोखवार होकर जाते हैं। एडीसीआर साहब को चाहिए कि यहाँ पर बाकायदगी से बैठे, सब रजिस्ट्रार बाकायदगी से बैठे और जो रजिस्ट्रियों की परतें गायब हुई हैं उनकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए ताकि जो जुम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और जो रेवेन्यू है वो दोबारा इकट्ठा किया जा सके। इस हवाले से बात करें, यहाँ पर जो केसेस आज चल रहे हैं तो आज की तारीख में ही केसेस के हवाले से बात करें तो ये आज की 43 केसेस है जो आज की तारीख में है, लेकिन अभी तक कोई भी अफसर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो यहाँ पर कोर्ट केसेस का फैसला कर सके। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। तो आपको बताएं, चनियोट बख्शी खाना में पुलिस की जानिब से वकील से बदतमीजी का मामला। बार एसोसिएशन की हड़ताल वकला ने अदालती बाइकआउट कर दिया। साइलिन दर बदर हो गए। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ चिनोट बार एसोसिएशन के एक वकील के साथ बख्शी खाना की जो पुलिस है उन्होंने मुबैना तौर पर बदतमीजी की थी, जिस पर वकला शराब एहतजाज हैं और उन्होंने आज अदालती जो अमूर हैं उनका बाइकाट किया है। वकला की जानिब से हड़ताल की गई है और वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। तमाम दूसरी तरफ जो अदालती साइलिन है वो दर बदर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज सैकड़ों ऐसे केसेज हैं दीवानी और फौजदारी जिनके समाअत जो है वो नहीं हो सकी। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, केस सुना गया नहीं सुना गया, क्या हुआ? 40 किलोमीटर करके हम केस और वकील ही कोई नहीं जा क्या वकील गया कोई नहीं। परेशानी लड़ाई झगड़े का केस है। जमानत के करवाने के लिए आए? जी हाँ, जमानत कराने के लिए बड़ी परेशानी है। वकील ने क्या होता है कि मैं नहीं पेश हो। बिल्कुल जी, ये इनका कहना है कि 30-35 किलोमीटर का सफ़र करके झंगड़ गलोत्रा से ये केस था लड़ाई झगड़े का, जिसमें जमानत के लिए आए थे। ताहम वकील वकला जो हैं वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से अदालती अमूर का बाइकाट किया गया है और दूसरी तरफ अदालती जो साइलिन है वो दर बदर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रीजन में एफबीआर के टैक्स केसेस का मामला। पहली समाही के दौरान 57 टैक्स गुजार कंपनियों का अदालती फॉर्म से रुजू। अदालतों ने एफबीआर को 1 अरब 50 करोड़ की रिकवरी से रोक दिया। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। अदालती फॉरम्स की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान 1500 मिलियन रुपए की टैक्स रिकवरी से रोका गया है। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन के 57 टैक्स गुजारों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल समेत मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स से रुजू किया गया था और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एफबीआर ने उनको हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस आयद किए हैं, उनकी आमदन इससे कम बनती थी,
या फिर उनका गलत रिकॉर्ड की बुनियाद पर एफबीआर ने उनको भारी टैक्सेस आयद कर दिए हैं, या फिर टैक्स केसेस के फैसले उनको सुने बगैर ही एफबीआर की जानिब से यकतरफा कर दिए गए और ये टैक्स उनकी तरफ नहीं बनता, जिस पर इन अदालतों की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी करते हुए टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम किया गया है। और साथ ही एफबीआर को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर लाहौर हाई कोर्ट इन केसेस पे अब प्रोसीडिंग करेगी और उस पर फैसले दिए जाएंगे, और जब तक इन केसेस के फैसले नहीं आते तो उस वक्त तक एफबीआर हुकाम को इन केसेस में रिकवरी से रोक दिया गया है। इस हवाले से टैक्स माहिरीन के मुताबिक अदालतों की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है, और दूसरी जानब एफबीआर को भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि अफसरान की जानिब से शहरियों को हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। फेस्को रीजन में बेहंगम तारों का मामला, 1100 से जायद बेहंगम तारों के पॉइंट्स यूं के तू 8 बाजार मंसूराबाद मदीना टाउन की मार्केटों में लटकते तार वबाले जान बन गए। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में लटकते बेहंगम तारों को जो है वो तरतीब देने में फेस्को नाकाम दिखाई देता है। फेस्को में 1100 से जायद लटकते तारों के जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, जिनमें चौक घंटाघर के 8 बाजार हों या मंसूराबाद की मरकजी मार्केट, लटकते तार हर जगह मौजूद हैं जो नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। हम शेखुपुरा रोड पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, लटकते तार जो है वो हर जगह मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से फेस्को से? लटकते तार जो मौजूद हैं तो यहाँ से किसी को भी करंट लग सकता है, लेकिन ये हमारे हुकाम की और खुसूसी तौर पे फेस्को हुकाम की ये गफलत है बहुत ज़्यादा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आप घंटा घर की बात कर रहे हैं, पूरे फैसलाबाद में आप गुंजान आबाद इलाकों में जाएं, वहाँ पे आप देख के हैरान होंगे कि ये खुदा की वो क्या कहते हैं ना, एक कुदरत पे ही चल रहा है निज़ाम, वरना वहाँ इतनी ख़तरा है कि बारिशें आती हैं, आपको पता है कि पानी भर जाते हैं, और इस तरह के लटकते तार कितने ख़तरनाक हैं। किसी बच्चे की जान जा सकती है, किसी बुज़ुर्ग की, बूढ़े की, औरत की, तो कितना नुकसान है। जान का नुकसान तो रिकवर नहीं ना हो सकता। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों को यही कहना है कि लटकते तारों की वजह से नाखुशगवार वाकयात जो हैं वो रोनमा हो रहे हैं। फैसलाबाद रीजन भर में बेशतर गलियों, बाज़ारों और मार्केटों में लटकते तार मौजूद हैं। फेस्को जो है वो होश के नाखुन ले और लटकते तारों को जो है वो तरतीब दे ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए।